Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medibill Pro. So today we are going to start a 31st lecture in basic medical billing course. So today we are going to discuss all about the importance of place of service, what kind of codes are used for place of services, and what is the basic importance of place of services while submitting claims to different insurances. So today we are going to discuss different examples place of services. Also, we are just going to discuss what is the importance of place of service in medical billing. So let's start the lecture. Okay, so the place of service is a critical component of medical billing and coding. It plays a significant role in accurately documenting and billing for healthcare services. Here are some of the key reasons why the place of service is important in medical billing. As I have mentioned that place of service is quite important while submitting the claims to different insurances because there are different kind of codes which can be used for the different place of services. Okay, so while submitting the claims we need to verify that we need to be careful while using different kind of codes for place of services. Anyhow, we are just going to discuss different aspects why place of service is important in medical billing. So the first one is accurate billing. Means we have to, if we are just going to do accurate billing, and we just need to put different kind of a place of service codes while sending the claims to different insurances, and these could be the good one, these could be the corrected one. The place of service codes specifies where a healthcare services was provided, such a physician's office, hospital, nursing home or patient home. मीन्स आप लोग देखते हैं कि हाँ भी जहाँ पर भी किसी भी रेंडरिंग प्रोवाइडर ने कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, या तो वो हॉस्पिटल है या फिर वो पेशेंट का घर है, ठीक है, यू कैन से दैट नर्सिंग होम है, या फिर कोई फैसिलिटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी है जिसके अंदर डॉक्टर ने वो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर था या उसका ऑफिस था या कोई भी ऐसी जगह है, वो जगह जहाँ पर किसी भी प्रोवाइडर ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की होती है उसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ सर्विस, मीन्स द प्लेस वेयर द सर्विसेज आर रेंडर्ड. Okay, so this information is essential for accurately billing insurance companies, Medicare or Medicaid for the services standard. Okay, different place of services may have different reimbursement rates, so using the correct code is crucial for proper reimbursements. So वही बात है कि हाँ भी डिफरेंट रेट्स होते हैं डिफरेंट प्लेस ऑफ सर्विस के हिसाब से। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हाँ भी जब क्लेम को सेंड किया जाए तो उस क्लेम को सेंड करते वक्त जो प्लेस ऑफ सर्विस यूज़ की गई है उसके स्पेसिफिक जो कोड्स यूज़ किए गए हैं उनकी एक्यूरेशन होना लाजमी है, क्योंकि जब आपके जो प्लेस ऑफ सर्विस के कोड्स अगर गलत हैं, लाइक ये है कि एक डॉक्टर ने अपने ऑफिस के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है, या हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड की है, तो जब वो क्लेम सेंड किया जाएगा उसके अंदर अगर प्लेस ऑफ सर्विस लाइक 11 थी तो उसको 21 कर दिया गया है, so you are not going to get any kind of a reimbursement from any kind of a insurance. Your claim will be denied. ओके, सो इसके ऊपर पेनल्टीज भी हो सकती हैं, काफ़ी पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं, लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं. सो every provider should be careful while submitting the claims to different insurances. They are just going to use the correct place of service codes. Okay, next we see what we have. It's the compliance. Okay, accurate place of service coding is essential for compliance with healthcare regulations and payer guidelines. Means हर किसी पेयर की different guidelines होती हैं, उसके साथ उनकी compliance होना लाजमी है कि हाँ भी जो सर्विस जहाँ प्रोवाइड की गई है, हॉस्पिटल के अंदर, ऑफिस के अंदर, किसी फैसिलिटी के अंदर, ठीक है, नर्सिंग होम के अंदर, सो उसके हिसाब से उनकी प्लेस ऑफ सर्विस इस्तेमाल की जाती है. Incorrect coding can lead to claims denials or audits, potentially resulting in financial penalties or legal consequences. So as I have already mentioned कि हाँ भी जब भी कोई प्लेस ऑफ सर्विस का कोड गलत इस्तेमाल किया जाएगा, सो उसके सिलसिले में क्या होगा, फाइनली यू विल बी पेनलाइज्ड, आपको पनिशमेंट्स हो सकती हैं, आपके जो क्लेम्स आप सेंड करें वो डिनाई हो सकते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल while submitting the claims while using the codes for different place of services. The third one is claim processing. Insurance companies and government payers use the place of service information to process claims efficiently. When billing correctly, it helps streamline the reimbursement process, reducing delays in payments. जब आप जाहिर सी बात है कोई भी प्लेस ऑफ सर्विस थी, उसका जो आपने कोड था, लाइक ऑफिस का है तो 11 आपने यूज़ किया, ठीक है, तो उसके लिए जब आप कोड को करेक्ट यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो सीपीटी कोड्स यूज़ किए गए थे, डायग्नोसिस कोड्स यूज़ किए गए थे, या कोई भी प्रोसीजर है, सो उस प्लेस ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग होता है तो आपका क्लेम ईजिली प्रोसेस हो जाता है, ठीक है. बट व्हेन यू आर जस्ट सेंडिंग द क्लेम विद डिफरेंट प्लेस ऑफ सर्विस और उसके ऊपर जो प्रोसीजर यूज़ किए गए हैं वो डिफरेंट यूज़ किए गए हैं, लाइक कोई सर्जरी थी और आपने प्लेस ऑफ सर्विस जो लगाया है कोड वो 11 लगाया है, लाइक ऑफिस का लगाया है, देन यू मतलब किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे कि हाँ भी ये क्लेम जो आपका था
आपने ऑफिस के अंदर किस तरीके से सर्जरी की है। ओके, सो उसके हिसाब से कोई हॉस्पिटल का प्लेस ऑफ सर्विस का कोड होना चाहिए था, ठीक है। कोई फैसिलिटी का कोड होना चाहिए था जहाँ पर उस डॉक्टर ने ऑपरेट किया है, सर्जरी की है। ऑफिस के अंदर तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। सो वाइल सबमिटिंग द क्लेम्स वी हैव टू बी केयरफुल कि हाँ भी कौन सा जो सर्विस कोड था वो यूज़ किया गया है। ओके, सो इस तरीके से ये है कि आपके क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे और पेमेंट्स जो हैं वो रिसीव हो जाती हैं। Next we see is resource utilization. The place of service code reflects the type of facility where services were provided. Means कहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की गई है, वो जाहिर सी बात है वो उस कोड से हमें पता लग जाता है कि क्योंकि डिफरेंट प्लेस ऑफ सर्विसेज के डिफरेंट कोड्स होते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू रीड ऑल दोज कोड्स, few examples of these codes in next slides. So this information is valuable for tracking and analyzing resource utilization in healthcare. So इससे पता लगता है कि हाँ भी कौन से resources थे जो यूज़ किए गए थे, ठीक है। मीन्स प्लेस ऑफ सर्विस के हिसाब से आप लोगों को पता लग जाता है कि हाँ भी कौन कौन से एपरेटिस यूज़ किए गए हैं, कौन से प्रोसीजर्स यूज़ किए गए हैं, कौन से प्रोसीजर किए गए हैं, उस प्लेस ऑफ सर्विस से आइडिया हो जाता है। ओके, उससे ट्रैक करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। It helps healthcare organizations make informed decisions about allocating resources, planning for facility needs, and optimizing patient care. So इससे काफ़ी सारी जो organizations होती हैं उनको आइडिया जो होता है कि हाँ भी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पेशेंट की केयर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल की फैसिलिटी को रिक्वायर होती हैं। सो इस सिलसिले के अंदर सारे रिसोर्सेज का पता लग जाता है जो आप प्लेस ऑफ सर्विस वहाँ पर यूज़ करते हो। So the next one is quality reporting. Some quality reporting and incentive programs require the accurate reporting of place of services to assess the quality of care provided at various healthcare settings. जाहिर सी बात है क्वालिटी का कब पता लगेगा, जब आप किसी किस्म की भी लाइक की है कि कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, उसके अंदर कौन कौन से एपरेटिस यूज़ किए गए हैं। सो उसे पता लग जाता है कि हाँ भी इस फैसिलिटी के अंदर इस तरीके की क्वालिटी मौजूद है, इस तरह की मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि इस तरह के टेस्ट परफॉर्म कर सकती हैं। ओके, सो व्हेन सबमिटिंग वाइल सबमिटिंग द क्लेम्स टू डिफरेंट इंश्योरेंसेज, तो वहाँ पर जो सर्विस कोड आप अप्लाई करते हैं, जो यूज़ करते हैं, उससे आइडिया हो जाता है। उसके बाद जो सीपीडी कोड्स या जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं उनकी कोलैबोरेशन देखी जाती है, कंप्लायंस देखी जाती है कि हाँ भी आया कि ये कोड यहाँ पर यूज़ हो सकता था कि नहीं हो सकता था। जब हो सकता है तो उस सिलसिले में काफ़ी हमें आइडिया हो जाता है कि हम उन चीज़ को हम ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ भी इस हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, यहाँ पर ये कोड्स यूज़ किए जा सकते हैं, यहाँ ये प्रोसीजर्स अप्लाई हो रहे थे। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। इससे ये है कि हम हेल्थ केयर सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, उसको इन्हांस कर सकते हैं कि हाँ भाई जहाँ पर इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ जो लैक कर रही होती हैं, अगर वो वहाँ पर इस तरीके की फैसिलिटीज़ लाइक अवेलेबल नहीं है, देन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। Next is research and analysis. Researchers, policymakers, and healthcare organizations use place of service data for various studies and analysis. जाहिर सी बात है कोई रिसर्चर है, कोई पॉलिसी मेकर हैं या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्लेस ऑफ सर्विसेज के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही होती हैं, लाइक उस प्लेस ऑफ सर्विस के ऊपर कोई भी मिस प्रोसीजर यूज़ किए गए हैं, कोई ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं, उसको फिर ये है कि हम रिसर्चर्स जो है अपनी रिसर्च के अंदर लेके आते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा उनको एडवांटेज होता है, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स हैं या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उससे जाहिर सी बात है ट्रैक कर सकती हैं, उनको एनालाइज कर सकती हैं कि हाँ भी यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, कौन सी गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, ठीक है, इस हॉस्पिटल के अंदर या इस फैसिलिटी के अंदर। सो दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ सर्विस। ओके, it helps in understanding healthcare trends, patient preferences, and the impact of care delivery in different settings. जाहिर सी बात है डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर पता लग जाता है कि हाँ भी इस पेशेंट को ये प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, इस बीमारी से रिलेटेड या इस डिजीज़ से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, तो उनका यहाँ पर ईजिली ट्रीटमेंट हो सकता है। The seventh one is medical coding. Medical coders use place of service codes in conjunction with other procedure and diagnosis codes to create complete and accurate claims. जाहिर सी बात है जो मेडिकल कोडर्स होते हैं वो क्या कोडिंग कर रहे होते हैं, मीन्स जो भी प्रोसीजर किया गया है उनकी सीपीडी बना रहे होते हैं, जो डायग्नोज किया गया होता है उनके डायग्नोसिस कोड बना रहे होते हैं, ठीक है। जब उनके पास प्लेस ऑफ सर्विस होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है वो उसको वो चेंज भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई डॉक्टर के ऑफिस के अंदर कोई फैसिलिटी या कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है, चेकअप किया गया है, तो वहाँ पर वो सर्जरी के कोड्स नहीं ऐड कर सकते। उनको जो भी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी जाती है वो इसके हिसाब से उन कोड्स को उस प्लेस ऑफ सर्विस के हिसाब से कोड्स करते हैं और उनके क्लेम्स बनाए जाते हैं। These codes ensure that healthcare services are appropriately categorized and billed.
facilitating effective data exchange between healthcare providers, payers and government agencies. तो इससे यही है कि हाँ भी जब डिफरेंट इंश्योरेंस को क्लेम सेंड किए जाते हैं तो वहाँ पर पता लगता है कि हाँ भी जो भी डाटा हम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास सेंड कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। लाइक ये है कि अब आप सपोज करें कि हम भी एक इंश्योरेंस को आप एक क्लेम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो उसकी प्राइमरी थी, और उसके सेकेंडरी को जो सेंड किया गया उसके अंदर प्लेस ऑफ सर्विस चेंज है। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दोज काइंड ऑफ invalid options. We are just going to use a correct and accurate billing options. Okay, so once we are just going to send different kind of a claims to different insurances, we are just going with the same flow, like we are just going with the same procedures. Okay, so the codes which were used in the previous, like you can say that in the primary insurance, we are just going to use those kind of a same procedures for the secondary insurance as well. We are just not going to make different kind of a mistakes while sending the claims, because if you make mistakes then your claims will be denied and you are not going to get any kind of a reimbursements for your claims. Next we have summary over here. The place of services is a crucial in medical billing because it helps ensure accurate reimbursement, compliance with regulations and efficient claims processing. It also plays a role in resource allocation, quality reporting, research and analysis. In the healthcare industry, healthcare providers and billing professionals must accurately document the place of service to maintain the integrity of the healthcare billing and reimbursement process. जाहिर सी बात है, in US, Canada or some other countries where the medical billing is quite important, USA, okay, so they are just going to use the accurate billing procedures, means they are just not going to use any false data, any incorrect information while sending the claims. ओके, सो जब भी प्लेस ऑफ सर्विस इस्तेमाल की जाती है, लाइक वहाँ पे उसके सेम जहाँ पर भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उनके वही कोड्स ही यूज़ किए जाते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से कोड्स होते हैं, किस किस स्पेसिफिकली जगह के लिए वो कोड्स यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पर भी जाहिर सी बात है डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड की है, सो उसी के हिसाब से वो कोड क्लेम के अंदर यूज़ किया जाता है, और जब क्लेम के अंदर कोड वो यूज़ किया जाता है और जो सीपीटी कोड्स होते हैं, डायग्नोसिस कोड्स होते हैं, वो भी उसके कंप्लायंस होते हैं, अकॉर्डिंग होते हैं, देन योर क्लेम विल बी जस्ट गेट पेड। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स, मीन्स अब हम देखते हैं कि हाँ भी प्लेस ऑफ सर्विस के कोड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उनकी क्या इलेबोरेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है कि वो कोड किस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स लाइक ये है कि अगर कोई भी डॉक्टर ऑफिस के अंदर अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसका क्या कोड है, कोई हॉस्पिटल के अंदर सर्विस प्रोवाइड की है तो उसका क्या कोड है, नर्सिंग होम के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड की तो उसका क्या कोड है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज सर्विसेज कोड कि हाँ भी ये सर्विस कोड है, ये यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। सो लेट्स सी। So the first one we have over here, its place of service codes in medical billing are numerical codes. मतलब ये numerical, इसके अंदर digits होते हैं, numerical होते हैं, numerics होते हैं, used to indicate where a healthcare service was provided. These codes help insurance companies and other payers process claims accurately and determine reimbursement rates. Each code corresponds to a specific type of healthcare facility or setting. While there are many place of service codes, I'll provide an overview of few common ones. बहुत सारे सर्विसेज कोड्स होते हैं, बट हम यहाँ पर कुछ चंद यहाँ पर देखते हैं, उससे जाहिर सी बात है आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी ये कोड्स होते हैं, इनको इस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं वाइल सेंडिंग द क्लेम्स टू डिफरेंट इंश्योरेंसेज। तो वही बात है कि हाँ भी जब तक ये है कि कोड्स आपके एक्यूरेट होते हैं, ठीक है, उस सीपीटी कोड्स और डायग्नोसिस कोड्स उसके अकॉर्डिंग होते हैं, योर क्लेम विल बी प्रोसेस्ड एंड पेड। अदरवाइज योर क्लेम विल बी डिनाइड। उसके लिए है कि आपको पनिशमेंट्स भी हो सकते हैं और लीगल कंसिक्वेंसेज या लीगल एक्शन भी आपके ऊपर लिया जा सकता है कि हाँ भी अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स क्लेम्स किसी भी इंश्योरेंस को या प्रेयर को सेंड कर रहे होते हैं। सो द फर्स्ट वन कोड इज प्लेस ऑफ सर्विस 11। ये कहाँ का है? ऑफिस का है। मीन्स जब भी कोई प्रोवाइडर ऑफिस के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो ये हम प्लेस ऑफ सर्विस कोड 11 यूज करते हैं वाइल सेंडिंग द क्लेम्स टू इंश्योरेंसेस। सो प्लेस ऑफ सर्विस के हिसाब से देखा जाता है कि यहाँ भी दिस कोड इज यूज टू इंडिकेट, सो द प्लेस ऑफ सर्विस 11 इज गोइंग टू इंडिकेट दैट द सर्विसेज विच वर रेंडर्ड वर इन द ऑफिस। मीन्स वो ऑफिस के अंदर सर्विसेज जो थी वो प्रोवाइड की गई हैं, किसी भी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, फिजिशियन ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो उसके ऑफिस के अंदर प्रोवाइड की है। मीन्स किसी पेशेंट को उसने चेक किया है, जैसे उसको डायग्नोस किया है कि हाँ भी इसको ये बीमारी है, या इस तरह की कोई चीज़ें जो थी। नॉर्मली जैसे हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर हमें चेक करता है कि हाँ भी इसको ये मीन्स बीमारी है या ये इसको मसला है। सो उस टाइप की जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, मीन्स कोई सर्जरी नहीं की गई, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जस्ट डायग्नोस किया गया है कि हाँ भी इसको ये मसला हो सकता है।
एनी हाउ फोकस करते हैं हम प्लेस ऑफ सर्विस के ऊपर। जो प्लेस ऑफ सर्विस है हमारी मीन्स दैट इज 11, सो मीन्स एनी काइंड ऑफ अ सर्विसेज दैट इज रेंडर्ड दैट रिलेट्स टू द ऑफिस, मीन्स ऑफिस के अंदर कोई भी जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो क्या होगी, प्लेस ऑफ सर्विस के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, 11। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। So the next place of service is 21. This is also quite very important place of service. Inpatient hospital. This code is used when a patient receives medical services in a hospital as an inpatient. It's typically associated with more intensive or extended care that requires an overnight stay. Means जब भी किसी patient को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, so these kind of a services, different kind of a services are rendered to that kind of a patient because उसको monitoring चाहिए होती है, उसको special care चाहिए होती है, ठीक है, और उसको वहाँ पर stay कराया जाता है। दैट डिपेंड्स कि हाँ भी उसकी किस सीवियर की इलनेस है या क्या उसके ऊपर प्रोसीजर्स किए गए हैं या उसको हीलिंग के लिए वहाँ पर मीन्स ये है कि स्टे करवाया जा रहा है। मीन्स एनी काइंड ऑफ अ सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड दैट इज़ प्रोलॉन्ग, मीन्स वो ओवरनाइट मीन्स एक दिन से ज़्यादा वहाँ पर पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ जाता है, सो दैट इज़ इन पेशेंट सर्विसेज। और इसके लिए हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ 21। ओके, सो मीन्स इन पेशेंट सर्विसेज के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, प्लेस ऑफ सर्विस, दैट इज़ 21। So the next one is 22, on campus outpatient hospital means अब instead of inpatient when we are just going to on campus means campus के अंदर जब outpatient services कोई provide की जाती हैं तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, 22। So this code is used when healthcare services are provided in an outpatient department that is not on the campus of a hospital. Means हॉस्पिटल के एक एरिया के अंदर है लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आता, मीन्स वो है कि उसके आउट कैंपस के अंदर है, ठीक है, बाहर ही। लाइक यू कैन से दैट कि हाँ भी जस्ट जब क्या है कोई यू कैन से दैट कोई एक्सरे की एक बाहर ही कोई मीन्स वहाँ पर लैब है, वहाँ पर जाके आपने कोई एक्सरे वगैरह करवाया है, ठीक है, मीन्स वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। सो उस तरीके की जो प्लेस ऑफ सर्विस होगी उसके लिए हम 22 यूज़ करेंगे। इट्स यूज फॉर सिचुएशंस वेयर द पेशेंट्स रिसीव सर्विसेज एट अ लोकेशन क्लोजली एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटल बट इज नॉट एन इन पेशेंट, मीन्स वो इन पेशेंट नहीं है, ठीक है। यू कैन से दैट कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल का एरिया है स्पेसिफिक, उसके अंदर लाइक ये है कि डिफरेंट यू कैन से दैट प्रोवाइडर है, डिफरेंट या रेडियोलॉजी लैब्स होती हैं, एक्सरे लैब्स होती हैं, कोई और डायग्नोस्टिक शुगर की मीन्स ये ब्लड काउंट के लिए या ब्लड के कोई टेस्ट करने के लिए कोई लैब है, ठीक है। वह वहाँ पर गया, उसने डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट करवाए, जो भी उसको मीन्स ये है कि उसने पूरा ब्लड ग्रुप जानना था या उसको कोई और चीज़ मीन्स ये है कि रिक्वायर्ड थी, ठीक है, उसने कोई एक्सरे करवाया है, बट वो हॉस्पिटल के अंदर उसने स्टे नहीं किया, ठीक है। जब वो स्टे नहीं करेगा तो मीन्स ये है कि वो आउट पेशेंट होगा, ठीक है। सो उसने कोई भी सर्विस रेंडर की है, कोई भी सर्विस मीन्स उसको रिसीव हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये है कि वो चला गया वहाँ से। सो सिंपली इसके लिए जब वो कोई किसी किस्म की प्लेस ऑफ सर्विस हम यूज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी 22। ओके, next we see its place of service 23. Emergency room hospital. This code is used for the services provided in a hospital emergency room. It indicates that the patient received care in an emergency setting. Means जब भी जाहिर सी बात है कोई भी emergency के अंदर patient लाया जाता है तो उसके लिए जो place of service इस्तेमाल की जाती है या जो भी वहाँ पर procedures use किए जाते हैं, treatment use किया जाता है at that moment, so उसको हम किस चीज़ में count करेंगे, emergency के लिए, और उसके लिए कौन सी place of service जो code है वो use किया जाएगा, that is 23। ओके, मीन्स कोई भी इमरजेंसी के टाइम के ऊपर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की गई है उसके लिए जो हम बिलिंग करते वक्त जो कोड यूज़ करेंगे इंश्योरेंस को क्लेम सेंड करते वक्त, उस क्लेम के अंदर जो कोड यूज़ किया जाएगा वो होगा 23। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सर्विस 31, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी। This code is used when services are provided in a skilled nursing facility. Skilled nursing facility offer post acute केयर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। मीन्स जब कोई जाहिर सी बात है किसी पेशेंट को किसी नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर एडमिट कराया जाता है, लाइक है कि कोई एडिक्टेड लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर एडमिट कर दिया जाता है, वो काफ़ी अरसे के लिए वहाँ पर मीन्स रहते हैं, ठीक है। जब तक ये है कि उनको रिहेबिलिटेशन, कोई मेंटली रिटार्ड होते हैं, ठीक है, उनकी डिसेबिलिटी होती है, सो उनको वहाँ पर रखा जाता है काफ़ी अरसे के लिए, ठीक है, जब तक कि वो ठीक नहीं होता है हो जाते। और इसके लिए डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उनके लिए जो प्लेस ऑफ सर्विस का कोड यूज़ किया जाता है दैट इज़ गोइंग टू बी 31 while sending the claims to different insurances. Next is place of service 32, nursing facility. This code is used when services are provided in a nursing facility which typically offers long-term care for residents who need assistance with activities of daily living. इसके अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि हाँ भी कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको काफ़ी अरसे के लिए वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, और वहाँ पर उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इसके लिए जो हम प्लेस ऑफ सर्विस कोड यूज़ करते हैं वो है 32।
Next is place of service 49, independent clinic. This code is used for the independent clinics such as freestanding urgent care centers और other outpatient facilities not associated with a hospital. मीन्स ऐसी सर्विस लाइक ये कोई प्राइवेट क्लिनिक है किसी भी डॉक्टर का, तो वहाँ पर कोई भी सर्विस अगर उस डॉक्टर ने प्रोवाइड की है, रेंडर की हैं, ठीक है, उस किसी भी पेशेंट को, सो उसके लिए जब हम क्लेम सेंड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो हम यू कोड यूज़ करेंगे वो होगा 49. Okay, next is 99, other place of service. This code is catch all for services provided in a setting that do not fit into other place of service categories. It may include services provided at the patient's home, telehealth services or other unique locations. Means जो हमने previously कुछ सर्विसेज देखी हैं, प्ले जो सर्विस कोड्स हैं, जब ये सब जो कोड्स यूज़ नहीं किए जाते, जो इसके अलावा मीन्स ये है कि जो कोड्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है, दैट इज़ प्लेस ऑफ सर्विस 99. अदर प्लेस ऑफ सर्विस मीन्स यहाँ पर यह है कि अगर कोई उन पिछले जो कोड्स हमने पढ़े हैं उनसे हट के अगर कोई प्लेस ऑफ सर्विस यूज़ की जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, 99 यूज़ करेंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेस ऑफ सर्विस 99. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. इट्स अ समरी. Like these are just a few examples of place of services codes which were used in medical billing. There are many more codes, each with a specific purpose to accurately describe where a healthcare service was delivered. Accurate coding of the place of service is essential for proper reimbursement and compliance with payer guidelines and regulations. So while sending the claims, the providers and the medical billing teams and the medical coders should be careful while adding the place of service codes in a claim. So if you are just going to add different kind of information that is not correct, that is not compliant with the CPD codes or the diagnosis code, then your claims will be denied. Okay, and you will be punished and audit will be done for your for your claims. So once you are just going to send the claims with different kind of insurances, you have to be careful that you are adding all the information in a correct way. Okay, it doesn't mean that you should use inaccurate ways. You should do different kind of accurate billing while sending the claims. You should place the correct place of service codes for sending the claims. Okay, so this was all it, I guess, and thank you so much once again watching my channel and watching me again. Inshallah, we'll meet in the next video. But if you guys have any kind of a confusion, any kind of a trouble while just looking all these lectures, watching all these lectures, then I'm available 24/7. You can just comment on this video. I will just get back to you with your answers and with your queries. So inshallah, we'll meet in the next lecture with different kind of a stuff on medical billing. If you have any queries, then you can just let me know. Okay, so till then, take care of yourself and your family. Inshallah, we'll meet in the next lecture. Allah Hafiz.